So yesterday we discussed till stratified random sampling. Today we are starting with the third type, that is two-stage or multi-stage random sampling. So suppose we have to estimate the per acre yield of wheat in Punjab. ठीक है? Just to recall, we are doing sampling, and this is the third method. We have already done random sampling, wherein we did the lottery method, and then we did stratified random sampling. So now this is the third one, that is two-stage or multi-stage random sampling. So if we have to estimate the per acre yield of wheat in Punjab, then we might obtain the entire, एक तो तरीका ये है that we can obtain the entire list of villages in Punjab and then select a given number at random. So that is according to random sampling procedure. Then from out of these selected villages, we might select a given number of fields at random, and this is a two-stage random sampling procedure. पहले तो हम लोगों ने at random select किया है कि हमारे जो एंटायर लिस्ट ऑफ विलेजेस हैं वहां से हमने पहले विलेजेस को ऐसे रैंडमली सेलेक्ट किया है, और उसके बाद उन विलेजेस में से जो ये सेलेक्टेड विलेजेस है उसमें से एट रैंडम हम लोगों ने फील्ड सेलेक्ट की है. सो दिस इज अ two-stage sampling procedure. And in another situation, we might first select some districts at random. So ये हमारा first random sampling हो जाएगा. Then from out of these selected districts, we select a given number of villages at random. ये हमारा second stage random sampling हो जाएगा. And from these selected villages, then we can select fields at random. This will be third random sampling within the same characteristic जो हमें analyze करना है. And finally select a few plots on those particular selected fields. So this is our fourth random sampling, fourth stage of random sampling. इसलिए ऐसे प्रोसीजर को जहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप रैंडम सैंपलिंग करते हैं, तो वो हमारा अगर दो स्टेज रैंडम सैंपलिंग होगा तो उसको हम टू स्टेज रैंडम सैंपलिंग बोलेंगे. अदरवाइज जनरली इसको हम मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं. So this method has been very widely used in crop cutting experiments for estimating the average yield of crops in different parts of India. So this is being used. ये method हमारा multi-stage random sampling use होता है. Fourth type or fourth method of sampling is systematic random sampling. So we have done normal random sampling, then we did stratified random sampling, then we did two-stage or multi-stage random sampling, and this is the fourth type, that is systematic random sampling. Suppose we have to select a few houses at random from a given city, and as we know, the houses are usually in rows and they are numbered. If there is house number for every house that we have. So in a given locality or on a given road, we might select one house at random and then select every 10th or every 15th or every alternate household. This is called systematic random sampling. पहले हमने एक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू एक हाउस होल्ड सेलेक्ट किया और उसके बाद उसमें हम लोग फिर गैप देते गए एवरी 10th हाउस होल्ड, एवरी 15th हाउस होल्ड. सो जो फर्स्ट स्टेप था, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में हमने रैंडम सैम्पलिंग की और फिर सिस्टमैटिकली हम लोगों ने हाउसेस को, या आप इंडिविजुअल्स की इनकम बोलोगे तो सिस्टमैटिकली फिर हमने उस कैरेक्टरिस्टिक को, उसका डाटा कलेक्ट किया है इन दी सैंपल. Suppose we want to know how much timber is available in a given forest. So we might choose a particular point on the boundary of the forest at random and then draw a straight line inside the forest in a direction. That direction is chosen at random. And then we select every 10th or 15th tree on this line starting from the first tree, and that first tree was chosen at random. Guys, are these two methods clear to all? टू स्टेज और मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. क्या ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं? लास्ट बचा है फिर पर्पसिव सैम्पलिंग बचा है, बट प्लीज कंफर्म दोनों चीजें आपको क्लियर है along with the two methods that we did yesterday. सिर्फ यश को क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है. ओके पार्थ, ऑलराइट विशाल, चलो. Okay, so now fifth and last one is purposive sampling. Now there are circumstances where purposive sampling might be useful.
For example, suppose we want to select an average student from a class of 100 students. So a random selection of a student might give us a very good or a very poor student also. Very good or very poor, we are talking in terms of marks as well, because they have the same probability of selection as an average student. Probability to sabhi ka same rahega. So, however, we want to select only an average student. तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हमें यहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट का ही सिलेक्शन करना है. Therefore, in the first instance, that is after clearly defining what do we mean by an average student. What do we mean by an average student? That is average in studies or belonging to an average family, etc. जब हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर करेंगे ना कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स इन इंडियन इकोनॉमी, वहां पे हमें पता चलेगा कि ये डेफिनेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम किसी भी वर्ड को डिफाइन कैसे कर रहे हैं. तो पहले हम इस पर्पस को डिफाइन करेंगे कि ये जो एवरेज है ये एवरेज इन स्टडीज है या ये बिलोंगिंग टू एन एवरेज मनी इनकम फैमिली है. हाउ डू वी डिफाइन दिस एवरेज टर्म? वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट आवर पॉपुलेशन टू दैट ऑफ ओनली एवरेज स्टूडेंट्स. तो हमें पहले पॉपुलेशन में से जो हमारा पर्पस है उस पर्पस के हिसाब से हमको एक डाटा कलेक्ट करना होगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो सब एवरेज के ही स्टूडेंट्स होंगे. एंड देन वी विल सेलेक्ट वन आउट ऑफ देम बाय रैंडम सैम्पलिंग मेथड. So the restriction on the population is based on the purpose of the analysis. ये जो हम लोगों ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे एवरेज होने चाहिए. दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन दैट इज पुट ऑफ बिकॉज ऑफ दिस पर्पस ऑफ द एनालिसिस जो हमको करना है. Therefore, it is called purposive selection. And we might like to know the incidence of inflation on the middle class families. Middle class families पे inflation का क्या impact पड़ता है? Then we have to select ओनली द मिडिल क्लास फैमिलीज. उसमें हम लोग लोअर या अपर क्लास तो नहीं सेलेक्ट करेंगे ना. फिर हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मिडिल क्लास फैमिलीज को हम कौन से इनकम रेंज से कहां तक, क्या वो इनकम रेंज है जिसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि ये मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज है. सिर्फ हम उसी का डाटा लेंगे और सिर्फ उन्हीं के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट है वो एनालाइज करेंगे. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग दैट हैपेंस इन द रियल सिनेरियोज. So, to summarize the discussion of the preceding paragraphs, we note that the sample we select should be representative, a good representative of the population, so that if we analyze the sample values to draw the inferences, sample values मतलब जब हम लोग ये sample values को use करेंगे, इनसे जो हम statistic estimate निकालेंगे और उस estimate के basis पे inferences मतलब जो हम conclusion निकालेंगे उस पॉपुलेशन का, वो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की जो हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे वो बायस्ड रिजल्ट्स नहीं होने चाहिए. सो रैंडम सैम्पलिंग इज यूजफुल इन केस द पॉपुलेशन कैन बी रिगार्डेड एज होमोजीनियस and there is no danger of the results becoming biased due to the selection of the extreme values in the sample. तो हम लोगों का रैंडम सैम्पलिंग वहीं पे एप्लीकेबल होएगा जहां पे हमारे होमोजीनियस रिजल्ट्स होंगे. जब भी आपको याद है जो हमने होमोजीनियस डाटा होगा, जब भी आपको याद है हमने सेकंड मेथड में स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग किया था कि अगर हमारा जो पूरा ओवरऑल डाटा है वो अगर डिफरेंट मतलब डाइवर्सिटी है उसमें, हेट्रोजेनिटी है, होमोजेनिटी नहीं है, तो हम डिफरेंट स्ट्रैटाज में उसको डिवाइड करेंगे. एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, या तो पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स ले लो या डिफरेंट स्ट्रैटाज में डिवाइड करके कोर्स वाइज स्टूडेंट्स लेके एनालाइज करो और उसके अंदर फिर रैंडम सैम्पलिंग करके वी विल सी व्हाट इज द इंपैक्ट. सो रैंडम सैम्पलिंग को यूज करने की प्रायर कंडीशन है कि हम लोगों की होमोजेनिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए. अदरवाइज जो हमारे कंक्लूजन होंगे वो बायस्ड कंक्लूजन्स हो सकते हैं. However, in case the population is not homogeneous, we might resort to stratified random sampling by dividing the population into homogeneous strata. Systematic random sampling is useful in the case the population units are arranged in some particular way. जैसे हमने houses का बोला, वो एक particular way में already assigned है. ऐसा नहीं है कि हम अगर दोबारा से वो डाटा लेंगे तो वो जो 10th हाउस होल्ड है वो 10th हाउस होल्ड ना होकर 20th हाउस होल्ड आ जाएगा वहां पे. दिस विल नॉट हैपन. तो एक फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड कैटेगरी, एक फिक्स्ड सिस्टम के तहत हमारी वो चीजें डिफाइंड होती हैं. So in some way or such as the houses are arranged in rows and blocks locality wise etc. And purposive sampling is useful when the purpose of the analysis is given so that we are interested in only a specific subset of the total population. तो यहाँ पे हमने जो 5 तरह की मेथड ऑफ सैम्पलिंग डिस्कस किए थे, तो डिफरेंट मेथड में हमारी क्या चीजें यूजफुल होंगी, क्या हमें यूज करना चाहिए, कौन सा मेथड, वो यहाँ पे एक्सप्लेन है. ऑलराइट, अखिल, यू आर नॉट दैट रेगुलर इन द क्लास.
नॉट दैट रेगुलर, आई थिंक आपने काफी टाइम से क्लास अटेंड नहीं किया और आज भी आपने 10:44 पे ज्वाइन किया है। मैं अपनी क्लास का फ्लो ब्रेक नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको कुछ बोला नहीं, बट आई वोंट बी गिविंग अटेंडेंस फॉर यू फॉर टुडेज क्लास। 10:40 इज द लास्ट जब मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एंड इफ यू हैव टू से एनीथिंग यू कैन से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। ऑल राइट, so guys, is this clear? Methods of sampling clear to all? Methods, 5 methods of sampling is clear to everybody? Please confirm. क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग अब थोड़ा लिखने वाला काम आएगा। प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स, योर पेन्स, वी नीड टू डिस्कस फ्यू थिंग्स कि हम लोग अगर हमें सैंपल कितने का सैंपल हमें बनाना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, विद रिप्लेसमेंट सैंपल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ऑल दोज थिंग्स वी नीड टू डिस्कस। आर यू रेडी? कैन वी स्टार्ट राइटिंग? कैन वी स्टार्ट राइटिंग? या आपको 1-2 मिनट चाहिए अगर आप इस बिलीफ में थे कि आज भी कुछ नहीं लिखना है तो? कैन वी स्टार्ट राइटिंग? जस्ट कंफर्म। All right, Yash. Yash is prepared. Okay, चलो. So next, now we are doing, ये हमने थ्योरी अभी तक की सारी डिस्कस कर ली है. Next we are doing sampling distribution of an estimator. कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. सो वी आर सेइंग कि हमको अगर बहुत मतलब हमको सपोज हमारी पॉपुलेशन है 1000 की, ठीक है, और उसमें से हमको सैंपल ड्रॉ करना है 200 का. अब वो विदाउट रिप्लेसमेंट करना है या विद रिप्लेसमेंट करना है, हम वो सारी चीजें अभी यहाँ पे समझेंगे. सो वी आर सेइंग दैट सपोज एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ. सपोज कि हमारे सैंपल में छोटे से स्टार्ट करते हैं. द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ only 3 individuals. The population consists of only 3 individuals and the values of the variable x, मतलब ये जो 3 इंडिविजुअल्स हैं इनके जिस भी कैरेक्टरिस्टिक को हमें एनालाइज करना है, चाहे वो इनकम को करना है, चाहे वो एजुकेशन को करना है, चाहे वो हेल्थ को करना है, तो ये x वेरिएबल हमारा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है जो इन 3 इंडिविजुअल से एसोसिएटेड है. And the values of variable x are given as follows. So the values are x1 equal to 8, x2 equal to 10, and x3 equal to 12. So we need to obtain, the question says, obtain samples of size 2. 3 हमारी जो पॉपुलेशन का नंबर है दैट इज 3 और हमें सैंपल ऑब्टेन करना है सिर्फ 2. तो when sampling is there are 2 parts. Number 1, अगर हम बोल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करनी है. विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग का ये मतलब है कि अगर हमने पहला सैंपल लिया, लिखने का टाइम दे दूंगी, पहले समझ लो. अगर हमने पहला सैंपल लिया जिसमें सपोज ये 8 नंबर सेलेक्ट हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोगों का ये 8 सेलेक्ट नहीं होगा, नेक्स्ट में 10 और 12 ही सेलेक्ट होएगा. सिमिलरली अगर हमने फर्स्ट सैंपल में 10 सेलेक्ट हो गया तो नेक्स्ट में 8 और 12 ही सेलेक्ट हो सकता है. और थर्ड केस में अगर हम लोगों का 12 सेलेक्ट हो गया तो हमारा नेक्स्ट में 8 या 10 ही हो सकता है. इसका मतलब जिस तरीके से हमारा जो सैंपल बनेगा ना, उस सैंपल के सिर्फ 3 ही चांसेस हैं, वो सैंपल हमारा 3 तरीके से ही बन सकता है. सो वी विल से दैट द पॉसिबल samples will be सैंपल नंबर. अगर हम लोगों का फर्स्ट सैंपल में सैंपल वैल्यू 8 सेलेक्ट हुई है तो नेक्स्ट में या तो 10 होएगा या फिर नेक्स्ट में 12 होएगा, ठीक है. और थर्ड क्या है, अगर हमारे फर्स्ट सैंपल में 10 हुआ है तो 8 और 10 तो हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोगों का 12 होएगा. तो ये तीन तरीके का हमारा सैंपल बन सकता है अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमें विद अ पॉपुलेशन ऑफ 3 इंडिविजुअल्स से सैंपल कलेक्ट करना है, सैंपल ड्रॉ करना है 2 इंडिविजुअल्स का एट रैंडम. क्या आपको ये विदाउट रिप्लेसमेंट क्लियर है? जस्ट नोट दिस डाउन एंड लेट मी नो इफ इट इज क्लियर. इसके बाद फिर विद रिप्लेसमेंट करेंगे.
Let me know when it's done and it's clear to you. Waiting. Okay, Yash. DC Rishabh. Okay. All right, Parth. If anybody wants me to wait, please let me know. Otherwise, I'm rubbing off this without replacement. मैं इसी के नीचे with replacement करूँगी. So this is your next part, that is with replacement. So see what can happen with replacement now. Okay, Akhil, I hope you mean what you are writing. Yeah. So with replacement now see, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमें विद रिप्लेसमेंट है तो इसका मतलब हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि नेक्स्ट नंबर भी चूज नहीं हो सकता, सेम नंबर भी हमारा चूज हो सकता है. सो वी आर सेइंग फर्स्ट टाइम अगर हम लोगों का 8 हुआ है तो नेक्स्ट टाइम भी 8 आ सकता है ना. और अगर हमारा फर्स्ट टाइम 8 हुआ है तो नेक्स्ट टाइम 10 आ सकता है. फर्स्ट टाइम 8 हुआ है तो नेक्स्ट टाइम 12 आ सकता है. अब चाहे आप इस 8 10 को 10 8 भी लिख सकते हो और इसको 12 8 भी लिख सकते हो. तो ये तो हमारे 3 तरह के सैंपल्स हो गए. फोर्थ सैंपल क्या आ सकता है अगर हम सेकंड नंबर देखें तो या तो 10 10 आ सकता है या 10 12 आ सकता है या फिर 12 10 आ सकता है. और फिफ्थ, sorry, this is fourth, this is fifth, sixth sample will be 12 12. बाकी सारे तो हम लोगों के ऊपर, अगर 12 के साथ 10 भी आ सकता है बट वो ऊपर हम लिख चुके हैं, 12 10 लिख चुके हैं, 12 8 लिख चुके हैं. सो अगर हम लोगों का विद रिप्लेसमेंट हो जाएगा, सो दिस सैंपल विल बी समथिंग लाइक this. Let me know when you are done and you are clear. I'll give you one question to do after this, which you will solve yourself and then I will write down. And then we will draw a general formula. अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं और फिर हम इसी एग्जाम्पल से जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ये तो छोटे छोटे हो गए कि भाई 3 पॉपुलेशन है, तीन इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन है, 1000 इंडिविजुअल्स का है तो क्या सबके लिखोगे. सो वो कौन सा जनरल फॉर्मूला है वो हम डिराइव करेंगे. इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, वो आप सॉल्व करना, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगी, मैच करना, कुछ ना समझ आए पूछना, एंड देन वी विल ड्रॉ दी जनरल फॉर्मूला. ओके विशाल. All right, Risha. Okay, Parth. If anybody wants me to wait, please let me know. Chalo. See, the question says, the question says, suppose the population consists of 5 individuals and the variate values are x1 is 4, x2 is 6, x3 is 8, x4 is 10, and x5 is 12. The question says obtain the samples of size 3 without replacement. Without replacement. Chalo. Just try to solve this. Let me know when you are done solving, then I'll solve. अच्छा, जब डन लिखोगे तो ये भी बताना कि कितने सैंपल्स बने हैं, कितने सैंपल्स बने हैं ये भी साथ में बताना.
हम 9 बनेंगे। नहीं कुछ कम ज्यादा है, कुछ कोई वैल्यू मिस हुई है आपसे। मैम 10। यस 10। हु सेड 10? मैम विशाल। Okay, Vishal, yes 10. Let's wait for others. यस मैम हो गया, 10 छूट गया था। Okay, waiting for others, guys. Please let me know. चलो, I'll write down. Match कर लेना. So there will be 10, and this is sample values. First will be 4, 6, 8. Second will be 4, 6, 10. Third will be 4, 6, 12. Fourth will be 4, 8, 10. Fifth will be 4, 8, 12. Sixth will be 4, 10, 12. Seventh will be 6, 8, 10. Eighth will be 6, 8, 12. 9 will be 6, 10, 12. 10 will be 8, 10, 12. Just match it. And now we'll go on to the. इसमें आप विद रिप्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हो. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. अननेसेसरी टाइम वेस्टेज है. आई थिंक थिंग्स आर क्लियर. अगर डाउट हो तो पूछ लो. नाउ वी विल मूव ऑन टू द जनरल फॉर्मूला. ठीक है, चलो. सो अगर हम ये बोल रहे हैं अब, इफ द पॉपुलेशन साइज इज कैपिटल एन. मैंने आपको कल भी बताया था कैपिटल एन हम यूज करेंगे अब जो पॉपुलेशन साइज है उसके लिए. बहुत क्लियरली लिख देती हूँ. दैट इज देयर आर n individuals in the population. ठीक है, अगर हमारा ये पॉपुलेशन साइज है और हम लोगों का जो सैंपल साइज, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 का सैंपल निकालो, 3 का सैंपल निकालो, वो स्मॉल n है. वो स्मॉल n है. दैट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सैंपल. देन द नंबर ऑफ possible samples without replacement is n factorial divided by small n factorial capital N minus small n factorial. इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे कितने सैंपल्स बनेंगे. फैक्टोरियल सबको क्लियर होगा. राइटिंग अगेन, n फैक्टोरियल मतलब n into n minus 1
into n minus 2. This will go on till 3 into 2 into 1. Small n factorial will be n minus 1, n minus 2. This will go to 3 into 2 into 1. And n minus n factorial will be n minus n, n minus n minus 1, n minus n minus 2, and this will go for 3, 2, 1. So these are the factorials of capital N, small n, and n minus n. Just note this down. ये जनरल फॉर्मूला है कि हमारे कितने सैंपल्स बनेंगे. इसके बाद हम लोगों को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे ड्रॉ करना है वो अभी हम विल जस्ट चेक दैट आउट. जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है. Okay, Yash and Vishal. Chalo, let us start with the sampling distribution table. So we are starting with sampling distribution of an estimator. डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब, अच्छा चलो एग्जाम्पल फिर से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं. सपोज पुराने वाला ही एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं. द पॉपुलेशन consists of 3 individual units and the, keep your calculators ready, variate values are x1 equal to 8, x2 equal to 10, x3 equal to 12. What is the population mean? Please tell me what is the population mean. Population mean को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे. ये आपको याद रखना पड़ेगा. फॉर्मूले में भी हम इसको यूज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा. पॉपुलेशन मीन को स्मॉल m से डिनोट करेंगे. प्लीज टेल मी व्हाट इज द पॉपुलेशन मीन. अगर हमारा पॉपुलेशन के 3 इंडिविजुअल्स हैं, इसका मीन कितना आ रहा है जल्दी बताओ. 10. 10. ओके. एंड व्हाट इज द population variance? population variance को हम डिनोट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से. प्लीज टेल मी व्हाट इज द वेरिएंस. वेरिएंस कितना आ रहा है? वेरिएंस का फॉर्मूला याद है? नहीं है तो अपने आप देखो और बताओ वेरिएंस कितना आ रहा है. एट बाई थ्री. सबका आ गया 8/3? प्लीज कंफर्म. सबका आ गया 8/3? कर रहे हो तो कर लो और कंफर्म करो. यस मैम. ठीक है. अच्छा, ये जो 2 चीजें हमने निकाली, ये तो पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाला. बट अब सपोज हम लोग इस मीन का एस्टिमेट कर लाना चाहते हैं. एस्टिमेट मतलब ये तो 3 इंडिविजुअल्स हैं, 1000, 2000, 2 करोड़ इंडिविजुअल्स होंगे तो उसका तो हमें एस्टिमेट चाहिएगा ना, जो हम सैंपल से कैलकुलेट करेंगे. तो हम लोगों को अब एस्टिमेट चाहिए पॉपुलेशन मीन का और एस्टिमेट चाहिए पॉपुलेशन वेरिएंस का. तो अब वो एस्टिमेशन के लिए वो एस्टिमेट हमें फाइंड करना है और उस एस्टिमेट के बेसिस पे हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ होएगा. So now we are saying that suppose we want to have the estimate of, से अभी सिर्फ पॉपुलेशन मीन की बात करते हैं. पॉपुलेशन मीन दैट इज m का एस्टिमेट चाहिए फ्रॉम अ रैंडम सैंपल
ऑफ साइज 2, जो ऊपर ये हम लोगों ने पॉपुलेशन 3 था तो कैपिटल N 3 हो गया, स्मॉल n हम लोगों का 2 हो गया यहाँ पे, और इसके बेसिस पे हम लोगों को एस्टिमेट फाइंड करना है पॉपुलेशन मीन का। तो जो हम लोगों का सैंपल का अर्थमेटिक मीन होता है ना, जो सैंपल का अर्थमेटिक मीन होगा, जिसको हम एक्चुअली बोल रहे हैं कि ये हमारा एस्टिमेट का वैल्यू होएगा, उसको हम डिनोट करेंगे एक्स बार से, उसको हम डिनोट करेंगे एक्स बार से, स्मॉल एक्स बार। तो जहां पे भी आपके फॉर्मूले में या कहीं पे भी एक्स बार लिखा होगा, दैट मीन्स दैट इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सैंपल, और जहां पे भी ये स्मॉल m लिखा होगा, इट मीन्स दैट इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब हम लोगों को सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x bar, that is of the arithmetic mean of sample। अब हमारा इसमें हमने पहले देखा था कि हम लोगों का सेम क्वेश्चन में हमारे 3 सैंपल्स बन सकते हैं। सो हम लोगों का क्या था, वो सैंपल नंबर 1 2 3 and the sample values were 8 10 8 12 10 12। तो हमारा जो सैंपल मीन होगा, ये सैंपल मीन भी तो अलग अलग होएगा ना इन वैल्यूज का। क्विकली फाइंड आउट द सैंपल मीन एंड लेट मी नो द वैल्यूज। सैंपल मीन फाइंड करो और मुझे वैल्यूज बताओ। 3 सैंपल मीन आएंगे ना, ये जो एक्स बार है 3 आएंगे ना, 3 सैंपल्स है तो 9, 10, 11. 9 10 11 and the answer is given by, who gave the answer? Yes. All right, yes. So it will be 9 10 11। तो ये जो हमारा एस्टिमेट्स आए हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स बार आया है, ये हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का टेबल है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट ओके, अगर किसी का मिस हो गया तो एक बार लिख लो, किसी का मिस हो गया तो लिख लो, अगर लिख चुके हो तो एक बार डन बोल दो। इसके बाद हमको देखना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल वेरिएंस। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने पॉपुलेशन वेरिएंस निकाला ना, उसी तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल वेरिएंस निकालना है। अच्छा हो गया है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस निकालो। अब जैसे ये सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, उसी तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, वो करके मैसेज करो कि हो गया। देन आई विल ड्रॉ दैट टेबल, then I will draw that. Just draw that and let me know. Yes, you are done with the variance also. Rishabh, are you guys done with the sampling distribution of variance as well? Or you are saying done for this? Calculating. Calculated? That's great. नो मैम, मैंने उसके लिए डन लिखा था, अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ वेरिएंस। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट करके मैसेज करो। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाओ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। लेट मी नो। टू अपॉन 3 है। 2/3 एक वैल्यू आई है। No, Rishabh, it's not 2 4 2 4 is right, 2 2 is not right. Yes, Manish, it's 141। बाकी लोग भी एक बार देखो और कंफर्म करो कि 141 आया है या नहीं।
Okay, Kanch. चलो, I'll just write down then. मैं इस x मीन को रब कर रही हूँ, इसी के नीचे लिखूंगी. So जो हम लोगों का सैंपल वेरिएंस होता है ना, सैंपल वेरिएंस, वो सैंपल वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं. दैट सैंपल वेरिएंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस स्क्वायर. जो हमारा पॉपुलेशन का वेरिएंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और जो सैंपल वेरिएंस होता है उसको हम डिनोट करेंगे एस स्क्वायर से. एंड दिस एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ x minus x bar divided by small n. Small n is the number of individuals in the sample. That is sample size. Obviously square होएगा. तो इसका जब आप कैलकुलेट करोगे एस स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, इट विल कम टू बी 1 4 and 1. दिस शुड बी योर आंसर. ऋषभ, आपका आंसर सही आ गया, और इसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर. ऋषभ, आपका आंसर आया? आ गया, ठीक है. मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था. चलो, जिस तरीके से अभी आगे और नहीं कराऊंगी, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी नीड टू डू, बट अभी नहीं कराऊंगी वो, अदरवाइज टू मच हो जाएगा. सो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे मीन फाइंड किया है, वेरिएंस फाइंड किया है, उसी तरीके से आप पॉपुलेशन का मीडियन फाइंड कर सकते हो. उसी तरीके से आप पॉपुलेशन का दूसरे पैरामीटर्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो फाइंड कर सकते हो, और फिर उसको सैंपल के साथ देख सकते हो कि कितना वेरी कर रहा है वो, कौन से वाला सैंपल हमारा नियर बाय है टू द पॉपुलेशन पैरामीटर्स. सो दिस वी कैन सी एंड एनालाइज. इज टुडेज टॉपिक क्लियर टू ऑल? प्लीज कंफर्म. कोई डाउट हो तो पूछ लो, इससे आगे आज नहीं करा रही हूँ. ठीक है. So shall I take attendance then if it is clear to all? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बड़ी जल्दी रिप्लाई आया अटेंडेंस का, वाह वाह. कभी कभी खुशी होती है ना 5-10 मिनट जब लेक्चर जल्दी खत्म हो जाए. चलो, वैसे बोलते रहो. समझ आया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता. Okay. Vikas. Present, ma'am. Present. Okay. Pranat. Tanay. Present, ma'am. Tanay. Okay. Tanmay. Present, ma'am. Tanmay. Okay. Rohan. Vishal. Present, ma'am. Okay. Rishabh. Yes, ma'am. Okay. Parth. Present, ma'am. Okay. Yash. Gaurav. Kanch. Present, ma'am. Okay. Kanch. Manish. Present, ma'am. Okay. Priya. Present, ma'am. Okay. Priya. Kanishk. Akhil. Present, ma'am. Okay. Pratham. Present, ma'am. Okay. Sonu. Anmol. Chalo. Anybody's name is missed, please let me know. Okay, Yash was there, but he didn't say present. All right, guys, if you have any doubt, please ask. Akhil, अगर आपको कुछ बोलना है तो बेटा अभी बोलो. यस मैम, वो आज ना चेहरे मैम ने क्लास स्टार्ट करी थी
10:43 पे, तो फिर उन्होंने ना 35 के बाद, हमेशा वैसे 35 के बाद ही अटेंडेंस लेती है मैम, तो फिर और मेरा रोल नंबर भी 46 से बहुत देर बाद आता है, इसलिए मेरी हमेशा से दैट्स नॉट माय कंसर्न अखिल, दैट इज नॉट माय कंसर्न। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्लासेस सारी चल रही हैं और ये तो एक्सक्यूज मैं आप ही से सुन रही हूँ। अब मैंने आपको पहले भी कहा था, आपकी जो भी फैकल्टी है उनको आप अपने एंड पे रिक्वेस्ट कीजिए, ये मेरा कंसर्न नहीं है। मेरी क्लास 10:30 शुरू होती है, मैं 10 मिनट का टाइम देती हूँ ज्वाइन करने के लिए। इट इज नॉट माय कंसर्न, यू नीड टू सी हाउ यू नीड टू हैव अ वर्ड विद योर टीचर। ओके मैम। मैं अपनी क्लास टाइमली खत्म करती हूँ, मेरी बाकी सारी क्लासेस में बच्चे टाइमली आ रहे हैं, तो ये एक्सक्यूज तो मुझे सिर्फ आप ही देते हो हर बार। नहीं मैम, जैसे गौरव भी है, उसका भी मेरे साथ रोल नंबर आता है, तो हम दोनों साथ ही ज्वाइन करते हैं। गौरव ने मुझे ये चीज कभी बोली नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर, सो बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आई कैन नॉट कॉल एंड टेल दैट फैकल्टी, आप जिनकी भी बात कर रहे हो, मैं उनको नहीं बोल सकती अपनी क्लास जल्दी खत्म करो। इट्स योर कंसर्न, योर अटेंडेंस इज बीइंग मिस्ड। आपको जैसे बात करनी है आप बात कीजिए अखिल, क्योंकि मैंने ये तो नहीं बोला 10:30 पे आओगे तो मैं नहीं दूंगी, बट देयर हैज टू बी अ लिमिट। 10:40 तक तो मैं टाइम देती हूँ सबको आने का, उसके बाद भी अगर आप लोग लेट कर रहे हो, अखिल लेट मी टेल यू, यू आर नॉट दैट रेगुलर आल्सो, सो यू डील विद दिस योरसेल्फ, हैव अ वर्ड विद योर टीचर, रिक्वेस्ट हर। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप उनको ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती इस केस में। आई डोंट टेक माई एक्स्ट्रा टाइम, मैं कभी भी नहीं लेती हूँ, टाइम पे ही फिनिश करती हूँ, सो आई कैन नॉट हेल्प यू। ओके सॉरी मैम एक बार सैंपल वेरिएंस वाले लास्ट फिर से समझा दो। हाँ, मैंने ये बोला है कि जो हम लोगों का पॉपुलेशन वेरिएंस होता है वो हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और जो हमारा सैंपल वेरिएंस होता है उसको हम स्मॉल एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन टेबल क्रिएट किया था, उसी तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस भी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल एस स्क्वायर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा जो पॉपुलेशन वेरिएंस का है, बस इसके अंदर जो हमने सैंपल लेना है, पॉपुलेशन में हमने तीनों नंबर्स लिए हैं, सैंपल के केस में हमें क्या लेना होगा, 8 और 10 लेना होगा, उसका मीन निकालेंगे, फिर x1 माइनस x बार, दैट इज x माइनस जो इसका मीन आया था 8 माइनस 9 एंड 10 माइनस 9, उसको आप ऐड करोगे, वो स्क्वायर करोगे, सो यू विल गेट दिस वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय n, स्मॉल n इज द सैंपल साइज, जितना भी हमारा नंबर्स हैं उस सैंपल में, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आएगा।